Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we are saying that we have started the JavaScript formally now, and we have to understand the JavaScript. We uncover the JavaScript engine. Okay, so maybe I call it opening the bonnet. Opening the bonnet. You may also would like to write with me, or maybe this video I can put it on the YouTube, because this is gonna be the important one, because this is different than no reading normal data types and all, because we have to understand how hoisting happen. How I said last time that if I have like this, if I am saying that I am saying console dot log a, okay, and I am keep declaring this variable a here, where a is equal to 10. I'm doing it here, but it is still not showing error. Okay, it's not showing error. It's rather telling me, if I say what's the a value of 8, it has to be undefined. If I do it here, for example, in my code, in my JavaScript, I say console. This is typically what we need to understand, console.log. So we have to understand the JavaScript model. I am saying a, okay, and then I say I'm declaring now where a equals to 10, right? And if I try to see it here and I open the console uh, here, and it's telling me it's undefined here. Okay, I could say here no, like this, value of a equals 2, then concatenate with a. And if I go here, have I done something wrong? Value of a equals to whatever it is, command s, what thing I have done, I concatenate with the a and refresh this. Oh, there's a breakpoint here, we should remove the breakpoint. Okay, there's this source, one second, script and index, there is no breakpoint now. Refresh it. Now it's telling me value of a equals to undefined, right? So it has, इसको click पड़ गया था, ये break point लग गया था. Value of a is equal to undefined. You see, it's telling me it's undefined. And if I say type of a, even, in fact, let me close my AirPods, they are low charge, leave it. So if I do the type of a, if I do the type of a here, you see, I have not at this line number 1, I have not declared my variable a. It is on the line number 3. So how come it is able to access it and it's telling me it's undefined? It could be undefined, but it should show me technically the error, क्योंकि अभी आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है. Or if I say console, is it capital? One second, I say console dot log data type of a equals 2, and concatenate with type of a. So I'm telling, give me the type of a. What's the type of a, right? Now if I go here, I refresh, this is again telling data type is also undefined and value is also undefined. There is difference between the two. Keep in mind, there's a difference between the two. This is type of a, okay. It should have been like this. I don't know why it has gone like this, and there should be another brace of that guy. Now it's telling me the data type is undefined and value is also undefined. Now whatever it is, I'm telling you how come the a has a value undefined. That means a is assigned, this a is assigned undefined. This is different. And it is also having data type undefined. That is different. These are two different things, because undefined is also a data type and we have also assigned it undefined, even though we have not created it. So this is what is called as actually the hoisting in JavaScript. So what is this hoisting in JavaScript? We need to, that's why I'm telling you that we have to open up the bonnet and see the execution model.
of JavaScript, we need to see the execution model of JavaScript. So what is the execution model of JavaScript? Let's try to work it out on this page. Okay, here. So what I am saying is we need to understand the execution model of JavaScript. Execution model of JavaScript. Unlike C and C++ and all, even other languages, it is totally different. If you do the same thing in a Java, it's different. Even you have created some function. For example, you create some function, fun function, and you have done it. And if you call it here, so the function is here, and then you call this function from here. Now this function is already being executed and done, seen by the interpreter. Now you say the fun, it is automatically go here and run it. But if you call it from here, it should have shown me the error. How can the call from here, जबकि अभी फंक्शन आपने देखी नहीं है, इंटरप्रेटर ने फंक्शन देखी नहीं, क्योंकि फंक्शन लाइन नंबर 1 पे कॉल है, लाइन नंबर से फॉर एग्जाम्पल 5 पे आपकी फंक्शन है, आपके इंटरप्रेटर ने अभी ये फंक्शन देखी ही नहीं है, तो ये कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहा है ये फन को, जबकि आपका सी एंड सी प्लस प्लस में है कि वहाँ पे हम फिर प्रोटोटाइप्स लगाते हैं, ऊपर बोलते हैं कि कंपाइलर को भैया आगे फंक्शन है उसके ऊपर जाने का है, कि अगर फंक्शन कॉल पहले ही आई फंक्शन डेफिनेशन से पहले। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसको खूबसूरती के साथ अगर आपने फंक्शन लिखी है और ऊपर पहले ही कॉल मारी तो वो फिर भी इसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है। सो ये कैसे मुमकिन है? दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड होइस्टिंग. It's the hoisting is being done. So how is it, what is hoisting and how is it being done? We can understand it only if we understand the execution model of our JavaScript. ठीक है ना? पहले मैं किसी बंदे को ऐड करता हूँ यहाँ पे, admit. Okay, if you have questions in the meantime you can ask. Okay, तो मैं जो कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन मॉडल में जो मेरा जावास्क्रिप्ट का है, बेसिकली पहले हमें ये सीखना है कि जो जावास्क्रिप्ट हमारे पास है, इट इज़ अ सिंगल थ्रेड. इट्स व्हाट? इट इज़ अ सिंगल थ्रेड. मल्टीपल थ्रेड्स हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारा जावास्क्रिप्ट जो है इट्स अ सिंगल थ्रेड एंड इट इज सिंक्रोनस. अब आपने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है, लेकिन खुद जावास्क्रिप्ट वो है सिंक्रोनस है, लेकिन एसिंक्रोनस के लिए हम एक्सटर्नल एपीआईज को इस्तेमाल करते हैं टू मेक इट एसिंक्रोनस. अब इस सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का क्या पंगा है कि हमारे पास लाइन नंबर 1 है, स्टेप 1, उसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे, उसके बाद हम स्टेप 3 करेंगे, तो स्टेप वाइज चलता जाएगा. दैट्स व्हाई वी से इट्स अ सिंक्रोनस एंड इट्स अ सिंगल थ्रेड गोइंग ऑन. हाँ, हालांकि हम इसको एसिंक्रोनस बना सकते हैं लेटर ऑन, लेकिन ये ऐसे काम करता है. तो जब आपका ये जो आपका थ्रेड है, ठीक है ना, इसमें दो चीज़ें आपको दी जाती हैं. एक आपका कॉल स्टैक दिया जाता है इस थ्रेड को, और आपको मेमोरी दी जाती है. यू आर गिवन टू थिंग्स, द कॉल स्टैक एंड मेमोरी. कॉल स्टैक हिसाब किताब रखता है कि आपको किस फंक्शन के पास जाना है. ये स्टैक बाज़ाब्ता होता है, फंक्शंस के नाम होते हैं, फिर से फंक्शन 2 आ गई, फिर फंक्शन 3 आ गई, फंक्शन ख़त्म हो गई तो उसको ख़त्म करेंगे. वो नॉर्मली जैसे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे. लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जब हम आपका जो एग्जीक्यूशन जो आपका मॉडल है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाता है कि आपको जो है, जो आपका रनिंग कोड है, आपको खाली रनिंग कोड ही नहीं होता जो कि रन होने वाला है, बल्कि आपको दिया जाता है साथ में सपोर्टिव स्टफ. यानी कि आपको वो सारी चीज़ें दी जाती है जिससे ये श्योर बना जाता है कि आप काम कर सको. जैसे कि अभी हमने कहा होइस्टिंग का मसला, वो होइस्टिंग हो तो आपको खाली रनिंग कोड ही नहीं है आप, और जो ये रनिंग कोड है उसमें आपके पास दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं. एक तो आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है, अभी आपको पूरा नहीं समझ आएगा, देन द लेक्चर एंड्स यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है और आपका फंक्शन कॉन्टेक्स्ट होता है. अगर आपके पास फंक्शंस होंगे, और फंक्शन को अपना दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं. एक इसका फंक्शन का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, और इसका लोकल या फंक्शन, लोकल बोले या फंक्शन बोले, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है. अब ये चीज़ क्या होता है मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फिर आई विल कम बैक टू दिस एग्जांपल. लेकिन जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आप जब एग्जीक्यूट करते हो अपने कोड को, एग्जीक्यूट होने से पहले, बेसिकली इट इज़ डिवाइड इनटू 2 स्टेप्स. आई से ए and I say B.
जो पहला स्टेप आपका है कि जो आपको किया जाता है इससे पहले कि कोड एग्जीक्यूट, अभी कोड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको दिया जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज मेमोरी क्रिएशन फेज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेमोरी क्रिएशन फेज। तो दो फेज आपके पास होते हैं, एक मेमोरी क्रिएशन फेज, दूसरा हो गया एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज यानी कि मैंने आपसे कहा कि जो आप यहाँ पे अब आएंगे, ये चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल, फिर इस पे आएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता है, रनिंग कोड तो होता ही होता है, लेकिन उससे पहले सप्लाइंग सपोर्टिंग स्टफ़ यानी कि सपोर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो देनी पड़ती हैं हमें। तो वो सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन फेज़ में तो आपका कोड रन करेगा, ठीक है ना, उसमें लाइन बाय लाइन क्या होगा, उसमें एक एक करके आपका लाइन एग्जीक्यूट होगा, है ना। सो एग्जीक्यूट कैसे, एग्जीक्यूट कोड लाइन पे, क्योंकि हमारा इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन होगा, ठीक है ना, वी आर एग्जीक्यूटिंग अवर कोड लाइन बाय लाइन। और दूसरा, वी क्रिएट ए न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन, जो भी हमारी फंक्शन होंगी, ठीक है, फंक्शन के लिए हम करेंगे न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। वो मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। ये तो हो गया, ये तो पता ही है कि मतलब एग्जीक्यूट करनी है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अभी फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है ना, या मैंने कुछ वेरिएबल्स लिखे, a इज इक्वल 10, b इक्वल्स टू 20, देखो मैं दो वेरिएबल्स लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा ही नहीं कुछ, आई विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग, या मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग इन इट। जब मैं इस पे आ रहा हूँ अपने पेज पे, जब मैंने लाइव ये किया, यहाँ पे पोर्ट पे लाइव चलाया मैंने इसको, तो ये तो चल रहा है, ठीक है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये तो चल रहा है, ये तो चल गया, ठीक है ना। आपके पास पहले जो चीज़ है, जिसको मैंने कहा आपसे कि मेमोरी क्रिएशन फेज़, उसमें पहला चीज़ जो आपको दिया जाता है, यानी कि वो कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले, अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि जो भी जितना भी आपके पास कोड है उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो पहली चीज़ जो आपको दी जाती है, आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और अगर आप उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को देखोगे, अगर आपके पास नोड जेएस होगा तो उसको हम ग्लोबल ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगर फिर वो तो अभी हमने ग्लोबल नोड जेएस पढ़ा नहीं है। अगर हमारे पास सीधे आपका जावास्क्रिप्ट भी है तो उसमें जो ग्लोबल आपका है वो विंडो है, वो क्या है, विंडो, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे इसको। और दूसरा जो होता है कि दूसरा चीज़ जो आपको दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड दिस। दिस मशहूर है तो पता ही आपको, अगर जावा आपने पढ़ा है, पीएचपी पढ़ा है, बाकी चीज़ें पढ़ी हैं, सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो वहाँ तो दिस होता ही होता है। दिस इज़ द करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है विच एक्चुअली पॉइंट्स नथिंग बट दिस विंडो। दैट मीन्स विंडो आप बोले या दिस बोले असल में सेम है, लेकिन दिस हमें हैंडल आ जाता है आपकी विंडो को। अब ना व्हाट इज दिस विंडो, लेट अस ट्राई टू सी दिस हियर इन अ ब्राउजर। आई राइट हियर, अभी तो मेरे पास कुछ कोड नहीं, जीरो कोड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विंडो, ठीक है। अभी आप देखो जब मैंने विंडो लिखा तो विंडो के सारी चीज़ें जो आपके पास हैं वो सारी की सारे मेथड्स आपको मिल गए मुफ्त में, यानी कि आपने अभी एक लाइन भी कोड नहीं आपके पास है, चाहे आपके पास लाइन ऑफ कोड हो या नहीं हो। आप देखो आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो फ़र्ज़ कीजिए आपने, जब आप मैं इसको मिनिमाइज ही करूँगा, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो अलर्ट, ये कहाँ से आया, आप अलर्ट करोगे, मगर कुछ देना पड़ेगा इसको ना, अलर्ट मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल हेलो, ओके। और ये अलर्ट यहाँ से आ गया, अलर्ट बॉक्स आ गया, जहाँ पे बाज़ाबिता आपको ये बॉक्स मिल जाता है, उसकी देखो शेडिंग करके है, उसको ओके बटन यहाँ पे है, उसका कलर है, और जो आपने टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे है। ये खुद ना आएंगी ना, ये खुद थोड़ी ना आएंगी। तो जावास्क्रिप्ट अभी आपने रन नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपके पास विंडो ऑब्जेक्ट दिया जाता है और उसमें टन्स ऑफ चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। विंडो में क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको लगती हैं ज़रूरत बनाने में। तो जो आपका ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, अगर मैं ये करूँगा बंद, जो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर है उसमें जो विंडो आपके पास है वो इस जो ये आपका विंडो जो आपको दिख रहा है भी, जो स्क्रीन दिख रहा है आपका,
इसमें जो ये वाइट कलर है या बाकी चीज़ें, ये कहाँ से आ गई जब तक कुछ है नहीं, कोई चीज़ चल नहीं रही पीछे से। अब ये तो आपका HTML भी आपका देगा खड़ा करके, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा क्या मसला है। लेकिन इस विंडो के अंदर आप काम कर रहे हो बिना किसी कोड के। जैसे मैंने अलर्ट किया, असल में ये अलर्ट नहीं था, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे अलर्ट कहा ना, असल में ये अलर्ट नहीं था, ये असल में विंडो डॉट अलर्ट था। हम अब शॉर्ट में लिखते हैं अलर्ट। इट्स एक्चुअली विंडो, जो अपनी विंडो हमारे पास है, जो पहला चीज़ दिया जाता है वो विंडो ऑब्जेक्ट करके देता है। इट्स एक्चुअली विंडो डॉट अलर्ट। अब हम शॉर्ट में अलर्ट लिखते हैं, ठीक है ना, वरना ये विंडो डॉट अलर्ट है। हो गया, तो इसको करें आप, देखो ये आगे वही चीज़ आ गई जो अभी हमने अलर्ट करके दिया था, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ गई है, ओके। अगर हम आप दिस कहेंगे यहाँ पे, और दिस भी आपके पास है, ओके, एंटर करो, ये फिर से वही चीज़ देगा जो जो विंडो दे रहा था, है ना। आप दिस को हो या आप विंडो को हो, दिस इज सेम थिंग, क्योंकि पहला काम जो आपको दिया जाता है वो ये विंडो ऑब्जेक्ट दिया जाता है। इस विंडो ऑब्जेक्ट में हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है, काम करने में लगेंगी। और दिस जो असल में है इसी विंडो ऑब्जेक्ट को, तो यानी कि आपको, मैंने कहा कि जब जो ही आपका प्रोग्राम जो है रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, उस एग्जीक्यूशन के दो हिस्से हैं। पहला है मेमोरी क्रिएशन फेज़। मेमोरी क्रिएशन फेज़ में ही आपको विंडो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं। और जो फिर दिस भी दिया जाएगा, और ये दिस कोई और चीज़ नहीं है, इसी विंडो को पॉइंट कर रहा है, ये सेम है, चाहे आप विंडो को हो चाहे आप दिस को हो, दिस इज सेम थिंग। वी कैन हैव अ रेफरेंस ऑफ दिस थिंग। समझ में आई बात? ओके, गॉट इट। तो दो चीज़ें मैंने कहा आपको दी जाती हैं पहले, एक तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करके दिया जाता है, और दूसरा आपका दिस पॉइंटर। ये दोनों पॉइंटर्स असल में है और दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। पॉइंटर हम किसे बोलेंगे यहाँ पे, जो रेफरेंस वेरिएबल हम कहेंगे, नॉट पॉइंटर्स। बेसिकली पॉइंटर एक्चुअली तो सेम ही होता है जो C++ में पढ़ते थे, लेकिन अब उसे रेफरेंस वेरिएबल्स हम कहते हैं, कि जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है जी, समझ में आया? और तीसरा चीज़, अभी एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं हुआ। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड है, यहाँ पे मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं कहूँगा लेट नेम इक्वल्स टू जैन, ओके। से फॉर एग्जाम्पल जैन है, उसके बारे में उसका रोल नंबर स्कूल का फॉर एग्जांपल 1 है। अब पता नहीं क्या क्या एज उसकी, फॉर एग्जांपल वो आई शुड से लेट ए रोल नंबर इज इक्वल एंड लेट एज इज इक्वल टू, और फिर हम देखेंगे होस्टिंग लेट से क्यों नहीं होती। अगर वेयर से होती है तो लेट से क्यों नहीं हो गई, ठीक है, वो भी सोचना है बाद में। एज उसकी 9 साल की है अभी, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी कैन हैव ये चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको बिल्कुल रुकाऊंगा यहाँ पे अपने कंसोल में, मैं जाऊँगा सोर्सेज में, यहाँ पे इसको ब्रेक करूँगा मैं ताकि आगे ना चले, रिफ़्रेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रुक गया है अभी कोड, यानी कि कोड लाइन ऑफ, पहला लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हो गई, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तब भी हमारे पास चीज़ें होंगी, तो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। अभी ये एग्जीक्यूशन फेज़ है, मैंने रोक दिया, आई स्टॉप्ड इट, क्योंकि मैंने पहले ही लाइन पे ब्रेक लगा दी, ब्रेकिंग पॉइंट है। मैंने इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ पे सोर्सेज में, अपने ब्रेक लगा दी, यानी कि पहली लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट अभी नहीं हुई, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आई हैव स्टॉप्ड एग्जीक्यूशन, यानी कि लिटरली मैंने इस फेज़ को रोक दिया, एग्जीक्यूशन फेज़ को, क्योंकि एग्जीक्यूशन फेज़ में लाइन बेल है आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन वो तो मैंने रोक ही दिया ना, मैंने ब्रेक लगा दिया ये। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेमोरी क्रिएशन फेज़ जो है, वहाँ से आपका जो है होस्टिंग निकलता है, कि होस्टिंग कैसे की इसने, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन फेज़ से पहले मेमोरी क्रिएशन फेज़ लगता है, ठीक है ना, जिसमें आपका विंडो आपके पास है, आपके पास दिस है, लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि आपके पास हीप भी है और स्टैक भी है। आपके पास हीप है, आपके पास स्टैक है। अब हीप और स्टैक ये दो मेमोरी एरियाज़ है, याद रखना चाहिए आपको। ये तो पॉइंट अप करिए तो इतना ही है, लेकिन हमारा जो ये मेमोरी क्रिएशन फेज़ है बहुत लंबा है, इसके बारे में बात करनी अमिट से लंबी है। जो हीप एंड स्टैक है दोनों मेमोरी एरियाज़ है, ठीक हो गया। स्टैक भी मेमोरी एरिया है, बट इट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, उस डेटा स्ट्रक्चर का है। और हीप बहुत बड़ा होता है, बड़ी मेमोरी होती है, स्टैक छोटी मेमोरी होती है।
और हीप में हर एक चीज़ नहीं रहता, हीप में डायनेमिक चीज़ें रहती है, इसमें स्टैटिक चीज़ें रहती हैं। वो क्या हो गया मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले जो हमारी पुरानी लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस है वगैरह, वहाँ आपको मेमोरी एलोकेट भी करनी पड़ती थी खुद, और डिलीट भी। यानी कि आपको आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसको डिलीट करना, यू हैव टू डू इट ऑफ योर ओन। सो ये मैनुअल होता था। लेकिन जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट नहीं बल्कि जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, आपका जावा हो गया, आपका सी हैश हो गया, आपका पाइथन हो गया, ये जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, ये मॉडर्न लैंग्वेजेस जो हैं, इवन पीएचपी भी उसमें भी कहीं हद तक, ठीक है ना, या मॉडर्न लैंग्वेज जितनी भी सारी भी हैं, उसमें जनाब आपको जो ये डिलीट वगैरह वो चीज़ें होती नहीं है। जावा में आप कहीं पर या जावास्क्रिप्ट में कहीं पर आप डिलीट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वो खुद होती हैं यूजिंग द गार्बेज कलेक्शन। हमारे पास एक म्यूनसिपैलिटी का, जैसे म्यूनसिपैलिटी के डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो आपको कूड़ा, पहले आप कूड़ा लगाते थे खुद बाहर, अब आपको घर में बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब गाड़ी आती है वो लेके जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ आपको ऑब्जेक्ट्स डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो करेगा आपका गार्बेज कलेक्टर। ग्रीन टी गई ख़त्म, इसलिए परिणाम में असल, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है मसला कि पहले हीप और स्टैक में क्या फ़र्क है। जो आपका स्टैक है, हमने पढ़ा ना डेटा टाइप्स, हमने पढ़ा डेटा टाइप्स में क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा नंबर, हमने पढ़ा स्ट्रिंग, जो ना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव, इसीलिए उनको प्रिमिटिव बोलते हैं हम। उसमें नंबर है, उसमें स्ट्रिंग है, उसमें नल है, बूलियन है, हाँ जी, अनडिफाइंड है, ऑब्जेक्ट, सिंबल है, नहीं big ऑब्जेक्ट int, थोड़ी प्रिमिटिव है, सिंबल है, या बिग इंट मैंने कहा था, ये जो बिग इंट और सिंबल हमने कहा ना कि बाद में आ गई ये चीज़ें भी, ये सारी की सारी जो है, ठीक है ना, ये सारे के सारे जब भी आपको मिलेंगे तो ये स्टैक में घुसेंगे। जैसे आपने अभी वैर ए किया या लेट ए किया इज इक्वल 10, वो यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू इज इक्वल 10, फिर आपने बी वैल्यू किया, बी इज इक्वल 20, या अपने पास स्ट्रिंग है, नेम इज इक्वल टू जैन कहा आपने, वो यहाँ पे आ जाएगा स्टैक के अंदर। और आपका जो हीप है उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स, ये आपका हीप है। अभी कॉपी नहीं बनाना, मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा एंड यू विल मेक देन कॉपी, क्योंकि ये फिर याद नहीं रहेगा आपको कि मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। सो हीप जो आपका है उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब ऑब्जेक्ट्स आपके पास तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, या आपके पास ऑलरेडी चीज़ें ऑब्जेक्ट एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपकी एरे हो गई, ठीक है, आपके फंक्शंस दे आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, और आपके ऑब्जेक्ट जो आप खुद बनाओगे ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें, ये वेरिएबल मेमोरी लेते हैं, दे टेक वेरिएबल मेमोरी, कभी कुछ लेते हैं, कभी एक्स्ट्रा, कभी ज़्यादा, कभी कम, तो ये एक्सपैंड हो सकते हैं, ये श्रिंक हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो बंदे हैं ये फिक्सड होते हैं इनका, इसलिए इनका साइज़ रहता है कि आप किसी साइज़ के बाद जो मैक्स साइज़ आपके पास आएगी फंक्शन, उससे आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ है, उससे बड़ा नंबर इसमें नहीं जाएगा। जैसे नंबर है, मैक्स साइज़ जो उसका होगा उससे बड़ा नंबर नहीं जा सकता, उसका एक लिमिट है, ठीक है ना, लेकिन इनका लिमिट नहीं है, ये डायनेमिक है, ये ग्रो करते रहते हैं, इसलिए इनको हीप में रखते हैं। दिस आर कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। जैसे भी छोटा सा अगर हम प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे ये समझने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ लेट नेम इज इक्वल टू जैन, रोल नंबर इज इक्वल टू दिस, ये हो गए आपके नॉर्मल वेरिएबल, जिसमें स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया, एक डिजिट आ गया, ये भी नंबर्स हैं दोनों, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों कहाँ रहेंगे, आपके स्टैक पे। और अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे खुद ही, लेट या एरे बनाओगे, या एक ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, लेट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मैंने बनाया, ठीक है, इक्वल्स टू में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं रखूँगा नेम कोलन, ऐसे लिखते हैं, फिर मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल इफ्ला, ओके, एंड कामा, देन आई से फॉर एग्जांपल हर रोल नंबर, you should say roll, that number should be capital, roll number colon whatever, say for example इसका roll number 1 है, okay, and so on, and give terminator here, so that we have the student. Now I can create variable of type this, student itself is a variable, this is an object. Now what will happen here is, if I see it diagrammatically here, there will be a stack firstly, okay, और मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ें कब बन रही हैं, ये स्टैक हीप,
अभी एग्जीक्यूट कुछ नहीं हुआ, ये बन गई, ये है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये स्टैक आपके पास होगा और स्टैक के अंदर आपके पास नेम भी होगा और रोल नंबर भी होगा, लेकिन ये वैल्यूज़ अभी नहीं होंगे। जो ये वैल्यूज़ में दे रहा हूँ 9 1 जैन, ये तब आ जाएगा जब एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हमें जो एग्जीक्यूशन फेज, क्योंकि मैंने कहा कि आपके पास दो फेजेस हैं, एक तो मेमोरी क्रिएशन फेज है, ओके, और दूसरा एग्जीक्यूशन फेज है। वेरिएबल्स आपके होंगे, ओके, नेम, रोल नंबर, एज, स्टूडेंट के अंदर जो ये नेम है और ये रोल नंबर है, ठीक है ना। और ये हमारा फॉर एग्जांपल हीप है, दिस इज माय हीप एंड हियर इज माय ऑब्जेक्ट, दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज हियर, ओके। इनफैक्ट स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होगा, ये जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे होगा नेम और यहाँ पे होगा रोल नंबर इस स्टूडेंट का। ये मैं इन दो की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर है नेम और ये रोल नंबर। और जो स्टैक मेरे पास है, लेट मी चूज सम अदर कलर नाउ टू पुट अप थिंग्स। पहले आपका जो ये लेट नेम है, नेम, ये नेम यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसमें असाइन होगा अनडिफाइंड, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी ये जैन इसमें नहीं जाएगा, वो तब जाएगा जब आप एग्जीक्यूट करोगे ये कोड जो आपने लिखा है। लेकिन ये वेरिएबल का वजूद आएगा, ये सारा का सारा जितने भी चीज़ें आपके कोड के अंदर हैं उसको स्कैन करके जो रेंडरिंग इंजन आपका है उसमें से जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनका वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा। नेम इसमें लेकिन अनडिफाइंड होगा, रोल नंबर अनडिफाइंड ये होगा, लेकिन एज आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट वेरिएबल है, बट इट्स पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट इन द हीप, ओके, बिकॉज दिस स्टूडेंट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, दिस वन इज अ रेफरेंस वेरिएबल, इट इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द हीप, जो हीप के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये जो नेम, इफ्ला, रोल नंबर, ये स्टैक में नहीं होंगे, ये आपके हीप में होंगे। लेकिन नेम अनडिफाइंड होगा, आपका रोल नंबर अनडिफाइंड होगा, क्योंकि अभी हमारा कोड चला नहीं, ठीक है ना। फर्ज कीजिए ये समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब अगर मैंने ये कहा कि भाई साहब मैंने लेट ऐसे सेकेंड नेम है, सेकेंड नेम इज इक्वल, उसमें मैं नेम ही डाल रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये नेम है यानी कि उसमें क्या था जैन में, वो सेकेंड नेम में डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरा रोल नंबर है उसको छोड़े, ये जो स्टूडेंट मेरे पास है उसको हम कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो ये स्टूडेंट है मैं बुलाऊँगा लेट स्टूडेंट 2 फॉर एग्जांपल इज इक्वल, उसमें मैं स्टूडेंट डालूँगा, ओके। स्टूडेंट 2 इक्वल स्टूडेंट, तो बेआइनी जो इसमें चीज़ें हैं वो इसमें जाएंगी। अब जो नेम के अंदर जैन है वो सेकंड इसमें जाएगा, लेकिन इसमें फ़र्क है। उसमें फ़र्क ये है कि जो भी मैंने मॉडल बनाया, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। जो अभी ये मेरा स्टैक है और ये मेरा हीप है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपका ये वाला जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने ब्लू लाइन से किया था, ध्यान से समझे, अच्छे से समझे, ठीक है ना। हो क्या रहा है, जो आपने पहले बनाया था, कौन आपके पहले पास नेम है, वो नेम यहाँ पे होगा, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे होगा, उसके बाद एज आपकी यहाँ पे होगी, उसके बाद आपका स्टूडेंट होगा। और जो ये स्टूडेंट है इट इज़ पॉइंटिंग टू व्हाट, द ऑब्जेक्ट इन द हीप। और उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका अपना नेम है, सॉरी उसका अपना नेम है यहाँ पे और रोल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये नेम और रोल नंबर इस ऑब्जेक्ट का है, जिसको स्टूडेंट पॉइंट कर रहा है, स्टूडेंट इज पॉइंटिंग टू दैट। उसके बाद आपने सेकंड नेम बनाया। अभी तो ये तो तब चलेगी ना ये चीज़ें जब आपको क्या हो जाएगा कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तब असाइन होगा। फिलहाल ये सारे के सारे जो होंगे ये अनडिफाइंड होंगे, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका सेकंड नेम आ गया, सेकंड नेम यहाँ पे है और फिर स्टूडेंट 2 ये यहाँ पे है। एक चीज़ है कि जब ये एग्जीक्यूट होगा, अभी तो ये ऐसा, अभी तो ये फ़िलहाल
पहले में है, मेमोरी क्रिएशन फेज़ में है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बन गई, ये है बन के। तो अब आप एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे तो आपकी जो नेम है वो हमें जैन चला जाएगा, तो यहाँ पे जैन आएगा, इसमें जैन आएगा, ठीक है, इसमें रोल नंबर में 1 आएगा, ओके, एज में 9 आएगी फॉर एग्जांपल, और ये स्टूडेंट के अंदर जो नेम है उसमें इफ़ला आएगा, स्टूडेंट के नेम में इफ़ला आएगा। अब एग्जीक्यूट के बाद रोल नंबर में 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद अब सेकंड नेम एक वेरिएबल बनेगा, ये सेकंड नेम है, ये वाला है सेकंड नेम, हाँ ये सेकंड नेम है, ठीक है ना। इसमें नेम ही चला जाएगा, यानी कि जैन का वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके अंदर भी जैन का वैल्यू ही आ जाएगा, लेकिन सेकंड नेम एक वेरिएबल है। अब जो आपका, लेकिन जैन अब दो जगह होगा, एक यहाँ पर होगा, एक जैन यहाँ पे होगा, क्योंकि जो सेकंड नेम और नेम ये दो वेरिएबल्स हैं, एक ये सेकंड नेम और ये नेम, ये दो वेरिएबल्स अलग अलग है, ये स्टैक के अंदर अलग जगह होंगे, नेम यहाँ पर है, सेकंड नेम यहाँ पर है। लेकिन जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है, जो अब आपने स्टूडेंट डाला, ये स्टूडेंट डाला आपने स्टूडेंट 2 में, ये जो स्टूडेंट 2 है ये अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, बल्कि ये इसी को पॉइंट करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने स्टूडेंट 2, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 को चेंज करूँगा, इफ़ आई चेंज व्हाट स्टूडेंट 2, अगर मैं यहाँ पे अब कहूँगा कि स्टूडेंट 2 डॉट नेम इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल यासिर, मैंने स्टूडेंट नेम का चेंज किया, तो ये जो चेंज हुआ ये कहाँ पे होगा, ये चेंज कहाँ पे होगी, हीप में। ये हीप में होगी चेंज, वहीं पे जो आपने हीप बनाया था यहाँ पे। अरे वो रब क्यों हो गया, मैंने तो रब किया ही नहीं था। तो जहाँ पे नेम इफ़ला था वो इफ़ला मिट के क्या बनेगा, यासिर। और जो यहाँ पे जो ये सेकंड स्टूडेंट नेम है ये इसी को पॉइंट करता है ना, और ये स्टूडेंट भी इसी को पॉइंट करता है। तो चाहे अब आपने सेकंड स्टूडेंट को नेम को यासिर बना दिया, अगर आप स्टूडेंट डॉट नेम को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करोगे तो वहाँ पे इफ़ला नहीं आएगा बल्कि यासिर आएगा, क्योंकि वो सेम बंदे को आपने चेंज किया, बिकॉज दे आर पॉइंटिंग टू द सेम। सो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है अगर वो आपने दूसरे में डाला तो वो एक ही को पॉइंट करते हैं, लेकिन वो स्टैक के साथ नहीं होता। जो आपके पास यहाँ पे आपने अब नेम डाला था सेकंड नेम में, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, सेकंड नेम एक अलग वेरिएबल है और नेम आपका अलग वेरिएबल है। नेम में अगर जैन था अब वो कॉपी होके यहाँ जैन में आ जाएगा, यहाँ पर भी, तो सेकंड नेम भी अलग है, नेम अलग है, तो दो जैन होंगे, लेकिन वो इस ऑब्जेक्ट में नहीं होंगे। अब वो बाद की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन मेन चीज़ जो समझाने का मुझे ये है कि वो ये है कि पहले मैं रेज करूँगा कि मेरे पास जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ चीज़ों को, ये चीज़ें, तो मुझे एग्जीक्यूशन में पहले डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं मिलती, मुझे फर्स्ट फेज़ में क्या मिलता है, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन फेज़, और दूसरे फेज़ में फिर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन फेज़। इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा, उससे मैं अच्छे से समझाऊंगा, सो यू अंडरस्टैंड। देखिए अब हम यहाँ पे जाएंगे, अभी कभी मुझे कोई लाइन चल रही है, नहीं चल रही है ना, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा क्योंकि मैंने अब चेंजेस लाई ना, इसने क्यों नहीं दिखाई चेंजेस इसमें, ये चीज़ तो दिखाना चाहिए था ना, कम कमांड एस सेव करेंगे, नहीं ब्रेक तो यहाँ पर है ना, मगर यहाँ मज़े ना ऐसे वो चीज़ें आएंगी ना, यहाँ पे ब्रेक है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन सोर्स में स्क्रिप्ट तो दिखाएगा ना कि है क्या चीज़ वहाँ पे, ठीक है। ये सोर्स जो है ना, वहाँ पे आपको पेज पे जाना है जहाँ से आपने स्निपेट किया था ना परसों, हमने स्निपेट जो हमने बनाया था, ये स्क्रिप्ट .js बनाया था ना उस दिन हमने स्निपेट में, सोर्स में, वहीं पे आपको पेज भी जाना है वापस, तो वो आपका कोड दिखाएगा ना वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपके पास है। जैसे इंडेक्स में ये आपके पास चीज़ें लर्निंग जावा, और स्क्रिप्ट में ये है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सेव नहीं हुआ था। एनीवेज ऑटो सेव ऐसे उसको रखा था, पता नहीं इस बार क्यों नहीं किया उसने। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन रन कुछ हुआ नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, रन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ स्कोप, ठीक है, ये स्कोप देखना है, और ये स्क्रिप्ट .js आपकी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो स्कोप आपका है, अभी स्कोप में अगर आपके पास फंक्शंस कॉल होती तो ये आपका स्कोप का ये बताता कि हमारे पास किसका स्कोप है। अब अगर हम ये स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे आप, ये स्क्रिप्ट आपका है, ओके, और ये आपका ग्लोबल है,
और ये ग्लोबल के बाद ये कॉल स्टैक है। कॉल स्टैक एम्प्टी है क्योंकि मेरे पास फंक्शन कॉल कुछ नहीं है, तो फंक्शन कॉल में मैं दिखाऊंगा कॉल स्टैक का ये। लेकिन जो ये मेरा ग्लोबल है, तो अगर आप वापस आएंगे इसके ऊपर, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए जब आप रन करोगे कोड, मैंने कहा था मैं समझाऊंगा वापस, आपके पास पहला एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आता है। क्या आता है? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। फिर अगर फंक्शन होगी उसका अपना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आएगा, फंक्शन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और उसका लोकल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, लोकल कॉन्टेक्स्ट और फंक्शन कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ईसी मीन्स एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पहला चीज़ जो आपको मिलेगा वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। और वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो ये ग्लोबल है। अभी रन कुछ भी नहीं हुआ, अभी जैन नहीं रन हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे, आपको जो स्क्रिप्ट पहले बता रहा है कि भाई मेरे पास स्टूडेंट है लेकिन वैल्यू अनअवेलेबल है। इसको पता है मेरे पास स्टूडेंट है, इसको पता है मेरे पास एज है, नेम है, रोल नंबर है। और अगर आप ग्लोबल में जाओगे और वहाँ पे आप देखो, ग्लोबल में हम जाएंगे टू द विंडो। हाँ, अरे यार बहुत नीचे है कहीं पे, कहाँ पे है वो? हाँ ऐसा कि होम बोन, एक मिनट, ये तो विंडो की चीज़ है ना हमारे पास। 1 सेकेंड, आई वॉन्ट एग्जैक्टली सी दीज वेरिएबल्स ना, हमारे पास ये वेरिएबल्स कहाँ पर है? सर ये लेट से डिक्लेयर हुए है ना, हाँ, ये ये विंडो के पार्ट है। ओह एग्जैक्टली, ये लेट से डिक्लेयर हुए हैं, तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आएंगे ही नहीं। दैट्स वेरी नाइस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, अगर ये लेट से डिक्लेयर हुए हैं तो ये तो ग्लोबल पार्ट में होंगे नहीं, पहली बात। क्यों? क्योंकि ये होंगे ग्लोबल पार्ट में, लेकिन बेसिकली ये भी ये होते हैं, लेकिन दे आर इन अ डिफरेंट जोन, दे आर नॉट इन अ ग्लोबल जोन। आई विल टेल यू अ लिटिल बिट लेटर, बट फर्स्ट जो यहाँ पे ये जो मैं विंडो में देखने की कोशिश कर रहा था इनको, तो वहाँ पे ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये लेट जो है उसका स्कोप ग्लोबल नहीं होता। ठीक है ना, मैं उसके ऊपर वापस आऊँगा। फिलहाल मैं क्या बता रहा था आपसे काम, कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिलहाल। ठीक है, हम स्क्रिप्ट में ही इसको देखेंगे। ओके, इसको स्क्रिप्ट में ही देखेंगे, क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा था वो इस पर लगेगा नहीं, क्योंकि वो लेट है। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। ओके, तो स्क्रिप्ट में फ़िलहाल देखो नेम जैन आ गया यहाँ पे। ओके, तो नेम क्योंकि एक लाइन चली, अब रोल नंबर आएगा, रोल नंबर जो आपका है वो 1 आएगा। ओके, अब स्टूडेंट में नेम में इफ़रा आ जाएगा। स्टूडेंट जो है उसमें आपका अभी चला नहीं शायद, हाँ अब चलेगा। अब इफ़ला आ गई यहाँ पे, और रोल नंबर उसका 1। ठीक है, आ गया। ओके, चूँकि ये लेट से किए हैं तो दे आर इन अ स्क्रिप्ट जोन, दिस इज़ अ डिफरेंट जोन, keep that thing in mind. But this is unaccessible for hoisting. I will make you understand what I'm trying to tell. This area जो script area है, ये let के लिए दिया जाता है। ये variables है, hoisting है, लेकिन जो हम काम करना चाहते थे कि मैं फंक्शन को कॉल करूं ऊपर, या वेरिएबल को डिक्लेयर नीचे करूं और ऊपर उसको प्रिंट करूं, हालांकि वेरिएबल्स है, बट दिस इज अनएसेसेबल। दिस जोन विच इज कॉल्ड एज अ स्क्रिप्ट जोन, ये अलग एक जोन है, ग्लोबल जोन में के अंदर हमारे पास नहीं होंगे। ठीक है ना, दिस इज अनएसेसेबल जोन, स्क्रिप्ट जोन जिसे हम बोलते हैं। ये लेट जो बंदे जो हमने लेट से किए हैं, ये उनके लिए लगता है। ठीक है ना, और ये स्ट्रिक्ट होता है, ये अनएसेसेबल होता है। तो इसको आप इन चीज़ों के साथ आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो कि आपने लेट वेरिएबल नीचे बनाया और ऊपर आप प्रिंट कर रहे हो, या फंक्शन कॉल नीचे हो रही है तो ऊपर कर रहे हो। अगर लेट होगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो इस जोन में आते हैं, स्क्रिप्ट जोन में, ग्लोबल जोन में नहीं होते। ग्लोबल जोन के मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा दूसरी। तो फिलहाल मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है ना, एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, एंड अब देखो सेकेंड नेम के अंदर क्या आ गया, स्टूडेंट। अब इसमें आ गया ना जो लेट्स, इसमें फिलहाल आपने स्टूडेंट डाला। ठीक है, जो सेकंड नेम इज गुड नेम, यानी कि सेकंड नेम बन गया, उसमें भी जैन आ गया, 2 बार जैन आ गया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट 2 डॉट नेम आप चेंज करोगे, बिकॉज स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 1 दे आर पॉइंटिंग टू द सेम थिंग, चाहे स्टूडेंट हो विच इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट,
इनफैक्ट स्टूडेंट 2 जो है वो भी इसी को पॉइंट करता है। अब वो यहाँ दो बार दिखा रहा है लेकिन है वो एक ही ऑब्जेक्ट है। Now you will see it will change both times. When I say Yasir here, and you will see what will happen if I go again. मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। अब यासिर आ गया तो यासिर अभी एग्जीक्यूट होगा यासिर। आप देखो इफला को क्या होगा, दोनों जगह इफला में चेंज आ जाएगी। तो यहाँ पर भी चेंज आएगी, यहाँ पर भी चेंज आएगी, क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट असल में है, ये दो चीज़ें नहीं है। ये आपके हीप के अंदर एक ही चीज़ है, लेकिन वेरिएबल्स दो हैं जिनसे आप एक्सेस कर पा रहे हो। जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है वो यकीनन दो है, जो कि खुद स्टैक के अंदर है। ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये दोनों खुद किस में है, ये दोनों खुद स्टैक के अंदर है। ये आपको याद रखना है दिमाग में कि यानी कि जो मेरा स्टैक है यहाँ पर, उसमें वो सारी चीज़ें आ गई। नेम था, जैसे मैं स्टैक बना हुआ है यहाँ पे, उसमें नेम पहले आएगा, फिर रोल नंबर आएगा, फिर एज आएगी, फिर स्टूडेंट आएगा। और ये जो स्टूडेंट है इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी। एंड जो आपका फिर न्यू सेकंड नेम आएगा, फिर सेकंड नेम यहाँ पर है, फिर स्टूडेंट है, स्टूडेंट 2 जो आपका है वो भी आपके स्टैक के अंदर है, वो भी पॉइंट करता है इसी ऑब्जेक्ट को। लेकिन चूंकि ये दो वेरिएबल्स हैं सो इसलिए दो वेरिएबल्स का दिखा रहा है, क्योंकि वेरिएबल्स दो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट 2 है और यहाँ पे स्टूडेंट है, ये दो वेरिएबल्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है। अगर दो होते तो फिर आपने चेंज की थी ना स्टूडेंट 2 को, इस स्टूडेंट को चेंज नहीं की थी, ठीक है ना। आपने किसको चेंज की थी, आपने चेंज की लाई स्टूडेंट 2 डॉट नेम, लेकिन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट डॉट नेम है उसमें चेंज नहीं लाई। तो फिर एक ही जगह होना चाहिए था स्टूडेंट 2 को चेंज। अगर ये दो ऑब्जेक्ट होते, आपको लगता कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, तो फिर स्टूडेंट 2 में अगर आपने चेंज की तो स्टूडेंट में चेंज नहीं होती। या फ़र्ज़ कीजिए मैं स्टूडेंट, जो मेरे पास ये स्टूडेंट है इसको मैं डिलीट ही करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको छोड़ ही दूंगा, मैं इसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ लगा दूंगा, तो ये चीज़ में रहेगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट 2 अपने इस जो हीप के अंदर चीज़ है उसमें लगा रहेगा। अब मेरा मसला ये था कि जो मैं बता रहा था, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल लूँगा, वैर की एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है ना। वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वैर, लेट्स एग्जाम्पल ऑफ वैर, ठीक है। इसको डिलीट ही करते हैं। आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल वैर num1 equals to, say for example 200, where num2 equals to 300, ठीक है। ओके, अब एक फंक्शन लिखते हैं हम जिसको इनको ऐड करेंगे, फंक्शन ऐड नम। मैंने फंक्शन ऐड नम की, इसको मैं दो वेरिएबल्स भेजता हूँ, वो दो वेरिएबल पकड़ूंगा मैं एक्स एंड वाई में। फॉर एग्जाम्पल एट दिस इज हियर अ फंक्शन and where I create a variable where sum equals to num1 तो इधर है नहीं मेरे पास, x and y है ना, so I can say x plus y, ठीक हो गया। and I can return this sum, ये sum मैं रिटर्न करूँगा वापस। अब जहाँ पे होगा, फ़र्ज़ कीजिए मैंने कॉल यहाँ पे की, अब फंक्शन को तो कॉल करनी है ना, मैं फ़र्ज़ कीजिए मैंने कॉल यहाँ पे की, मैंने इस ऐड नम को यहाँ कॉल की और मैंने इसको ना भेजा ये num1 एंड num1 एंड num2। तो यहाँ देखिए भाई साहब, ये प्रॉब्लम है कि मैं कॉल कर रहा हूँ 3 पे जबकि फंक्शन 4 पे है। अभी इंटरप्रेटर ने फंक्शन देखी नहीं, तो वो कैसे, वो तो कहेगा ना ये चीज़ क्या है। अगर आपने सी में ही किया होता, सी में तो ऐड नम किया होता आपने, तो सी बोलता पाजी ये क्या है, ऐड नम कौन है। अब क्योंकि उसने अभी फंक्शन देखी ही नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे प्रोटोटाइप लगाते थे। अगर आपको याद है सी प्लस में, तो वहाँ प्रोटोटाइप लगाते हैं ऊपर। तो यहाँ तो हम प्रोटोटाइप नहीं लगा रहे हैं, फिर भी चल रहा है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ जाऊँगा, पहले सेव, पता नहीं इसमें सेव क्यों नहीं हो रहा, ऑटो सेव था, फिर से परसों चला नहीं है, इसको रिफ़्रेश करेंगे, वापस लाएंगे अपने कोड पे। इनफैक्ट ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको क्लिक करेंगे हटेगा ब्रेक, इसको लगा है ब्रेक है, मैं रिफ़्रेश करूँगा फिर से, तो अभी कुछ नहीं चला मेरे पास। तो ग्लोबल बेटा, ग्लोबल यहाँ से ग्लोबल में अगर हम देखेंगे आपके जो वेरिएबल्स हैं ये, और ये जो आपकी फ़ंक्शन है, फंक्शन को भी मेमोरी दी जाएगी। यानी कि फंक्शन को भी बिना कोड एग्जीक्यूट किए, यानी कि आपने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया अभी, ये समझो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बेटा जी। आपने एग्जीक्यूट कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके पास दो हिस्से हैं, क्योंकि एक आपका है कि क्या है, शाबाश, मेमोरी क्रिएशन फेज, एंड दूसरा है एग्जीक्यूशन फेज। अभी एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं हुआ। मेमोरी क्रिएशन फेज में ग्लोबल स्कोप आपको दिया जाएगा। पहली बात, ग्लोबल स्कोप, आपके पास विंडो है, आपके पास दिस है,
आपके पास स्टैक है, आपके पास हीप है, ठीक है ना, और एक ग्लोबल स्कोप भी आपके पास है। इस ग्लोबल स्कोप के अंदर ये सारी वैर वाली चीज़ें आपके पास अनडिफाइंड करके है। असाइन कुछ नहीं है, 200 300 असाइन कुछ, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में लगेगा। जब आप एग्जीक्यूट करोगे कोड तब जाके 200, जब ये लाइन आप एग्जीक्यूट करोगे तब जाके नम में 200 जाएगा। लेकिन नम 1 पहले से ही अवेलेबल है, नम 2 पहले से ही अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि आपका पहला चल गया है मेमोरी क्रिएशन फेज, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बात समझ आई? अभी कुछ किया हमने? नहीं किया। तो आप यहाँ नहीं दिख रहे हो नम 1, इधर दिख रहा है? Yes, sir. नम 2 सर दिख रहा है? हाँ सर, नम 2 भी है, ठीक है ना। आपकी जो फंक्शन है जिसका नाम था एड नम, वो भी कहीं ना कहीं होगी, अगर आप ढूंढोगे उसको भी, वो भी सारा कोड आपको एड नम, ये देखो एड नम ग्लोबल में एड नम मिल गया है, एड नम आ गया है उसमें, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें हैं आपके पास, एड नम एक्स वाई वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब ये फंक्शन जो जब चलती है उसमें जो एक्स एंड वाई आपके पास है एंड ऑल दैट, जब फंक्शन चलती है उसका अपना, अगर इसके ऊपर वापस जाएंगे यहाँ पे, जो फंक्शन चलती है उसके अपने दो स्कोप्स लगते हैं, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और अपना फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इस चीज़ को ज़रा हम सीख लेते हैं। बजे कितने पहले मैं थक गया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है ना, इस चीज़ को यहाँ से। फ़िलहाल आप मेरे पास आए यहाँ से, स्टॉप प्रेजेंटिंग। अच्छा मेरा कैमरा बंद रखा था, हाँ। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेडेक पता नहीं परसों से जा नहीं रहा हुआ। मुझे कभी हेडेक होता ही नहीं है, पैरास्टामॉल मैंने कभी खाई ही नहीं है इस तरह से ना, कभी कभी खाता हूँ मैं जब ना बुखार होता था। आज पहली बार मैं हेडेक की वजह से पैरास्टामॉल खा रहा हूँ, समथिंग हैपनिंग। एनीवेज, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग प्रॉपरली? पहले आप अपना वेब कैम ऑन कीजिए। वॉइस वेब कैम ऑफ, गर्ल्स हैव एन एक्सक्यूज, अदर्स। हाँ जी फरजान साहब, आवाज़ समझ के? यस सर। सरल बेटा आपको समझ आता है? हाँ हाँ देखो बेटा, हाँ, जो sure. चीज़ें हैं ना, एक तो हो गया कि पढ़ाया डेटा टाइप तो खेल ख़त्म, लेकिन दूसरा हो गया कि अब इंजन खोल के दिखाना, ठीक है ना। इंजन Yes, sir. खोलना, उधर देखना नट बोल्ट ऑन करके क्या चल रहा है, कि भाई हम कह रहे हैं कि एक्सेलेटर दिया गाड़ी चली। एक तो क्या बोलना कि एक्सेलेटर, ड्राइविंग सिखाया एक्सेलेटर दबाया गाड़ी चली, मगर ये चली क्यों भाई? तो उसको समझने के लिए Yes, मेहनत sir. करनी पड़ती है, ठीक है। Yes. सो उसके समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एज ए प्रोग्रामर आप बढ़ते हो आगे, वरना आप एज ए प्रोग्रामर आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है ना। तो एवरीथिंग वी हैव टू अनप्लग एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड ना प्रॉपरली व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन। अभी पूरा इसका मैं करता अभी ये तो, बिकॉज इट विल टेक सम लिटिल मोर टाइम टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ समझ आ गई कि आप जो हॉइस्टिंग की बात करो, मैं कल हॉइस्टिंग में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि हॉइस्टिंग इसलिए पॉसिबल है, अब आपको खुद ही समझ आएगा हॉइस्टिंग, कि हमने कहा कि कंसोल डॉट लॉग ए, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्या, देन फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई वैर ए इज इक्वल 10, है ना। तो चूंकि अभी एग्जीक्यूट, अगर मैंने एग्जीक्यूशन स्टॉप ही कर दी, तो जो ही जावास्क्रिप्ट चलेगा तो उसने तो ए अनडिफाइंड बनाया होगा ना पहले ही। जिस तरह अभी अगर मैं ये करूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया स्क्रीन शेयर? अरे यार स्क्रीन शेयर होता है ना कहीं पर, ये वाला है ना, एंटायर स्क्रीन शेयर प्लीज़। अभी हम जब यहाँ पे जाएंगे ना, ये जो हमारी चीज़ है, अभी हमारा कोड चला नहीं ना, तो लेकिन आपके जो ये नम 1 एंड नम 2 है, यहाँ पे हमने देखा था, ये दिखा हमने यहाँ पे नम 1 एंड नम 2, ये तो मेमोरी के अंदर बैठे हुए हैं, इनको स्टैक दिया गया है, जहाँ पे ये अनडिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अनडिफाइंड है, क्योंकि अभी कोड चला नहीं ना, इसमें क्या डालना है वो बाद में, वो दूसरे फेज़ में होगा। लेकिन फिलहाल आपके पास नम 1 नम 2 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल डॉट लॉग नम 1, कंसोल पहले ही करूँगा ऊपर ही, मैं ऊपर ही यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल SOLE डॉट लॉग नम 1, तो ये कंप्लेन थोड़ी ना दिखाएगा, ये कंप्लेन थोड़ी ना दिखाएगा, क्योंकि इसके पास तो नम 1 है ना, अनडिफाइंड है, लेकिन क्योंकि अभी ये कोड चला नहीं है अभी।
डिक्लेयर अभी हमने अभी ये डिक्लेयर किया था ना, अभी इनिशियलाइज किया था, लेकिन उनकी डिक्लेरेशन एंड उनकी इनिशियलाइजेशन भी हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ अनडिफाइंड, एज यू कुड सी हियर. सो दैट इज़ वाई इट्स नॉट कंप्लेनिंग. इसी चीज़ को हम होइस्टिंग बोलते हैं डिफरेंट टर्म्स, जहाँ पे फंक्शंस या वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि इनको टॉप ऑफ द स्कोप लेके जाता है जावास्क्रिप्ट, जबकि वो टॉप ऑफ स्कोप असल में लेता नहीं है, बल्कि होता क्या है कि वो चीज़ें ऑलरेडी, क्योंकि हमारा जो वर्किंग मॉडल है, जो हमारा एग्जीक्यूशन मॉडल है, उसमें हम क्या करते हैं काम, हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं. मेमोरी एलोकेशन फेज हो चुका है, तो वो बंदा वहाँ पे है, इसलिए वो एरर नहीं दिखाता. अगर यही चीज़ आप सी के साथ करोगे तो भैया वो तो मर जाएगा ना, वो बोलेगा बच्चे की जान मत लो, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, वहाँ डायरेक्ट कंपाइलेशन होती है. तो वहाँ पे आपको पहले मेमोरी नहीं दी जाएगी. ठीक है, बस में आई. चलिए फिर इसी के साथ एंड करते हैं, सुबह इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला. सर जो जब हमने लेट किया ना लेट, उसमें भी स्क्रिप्ट्स में एग्जीक्यूशन से पहले ही उसको मेमोरी एलोकेट हुई. हाँ, तो ये बहुतों को लेकिन कंफ्यूजन होता है, बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि वो कहते हैं कि लेट में होइस्टिंग होगी नहीं. लेट में भी होइस्टिंग होगी, लेकिन वो डेड जोन है, वो इनएसेसिबल जोन है, वो एक्सेस लेकिन नहीं होगा. अनडिफाइनेड, वो उसको अनडिफाइनेड मिलता है प्लेस होल्डर के लिए. वहाँ पे स्क्रिप्ट जोन में, हाँ स्क्रिप्ट जोन में उसको अनडिफाइंड मिलता है, यस, लेकिन मिलता है. इनएसेसिबल है. इनएसेसिबल की वजह से अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो वो बताएगा क्या कर रहे हो यार, ये है कहाँ, क्योंकि जब शुने एक्सेस या सिक्रेट स्क्रिप्ट जोन, उसमें स्क्रिप्ट जोन जी इनएसेसिबल, सो शुने एसेसिबल. Okay. सो मगर है वहाँ पे, आपने देखा ना अभी लेट करके वहाँ पे था, Yes, sir. हाँ वैल्यू इनएक्सेसिबल दिखा रहा था. वैल्यू मगर था वहाँ पे. हाँ हाँ, लेकिन ऐसा अनडिफाइनेड नहीं दिखा रहा था, वही मैं पूछ रहा था. नहीं, इट इज़ उधर. अनडिफाइंड, क्योंकि रखेगा तो अनडिफाइंड ही. क्योंकि जब भी ठीक. कोई वेरिएबल होता है विदाउट बेसिकली, जब आप कुछ डालते नहीं हो, जावास्क्रिप्ट की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, व्हेन यू डोंट पुट एनीथिंग इन इट इज अनडिफाइंड. एक होता है नल, एक होता है अनडिफाइंड, ये 2 चीज़ें हैं. नल होता है, अगर हम नल डालेंगे चीज़ में तो उसका मतलब है कि इट इज़ एम्प्टी, वैल्यू है ही ओके. नहीं. हाँ, अनडिफाइंड होता है कि आपने भी डेटा टाइप नहीं दिया है, आपने कहा वैर ए, आपने क्या कहा, वेरी इक्वल टू नहीं कहा अभी. ठीक है, तो यानी कि अगर आप इक्वल टू कहते तो जावास्क्रिप्ट देखता कि भाई आप क्या डाल रहे हो इसमें, आप इंटीजर डाल रहे हो, आप नंबर डाल रहे हो, आप स्ट्रिंग डाल रहे हो, तो वो डेटा टाइप देता. जब आपने डाला नहीं कुछ तो वो अनडिफाइंड रखेगा. इसलिए चाहे आपका लेट हो या वैर हो, जब आपको मेमोरी मॉडल चलता है आपका, ठीक है ना, जो आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था ना 2 फेज हैं. पहले फेज को क्या बोलते हैं हम, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी क्रिएशन फेज है ना. जो मेमोरी क्रिएशन फेज है, मेमोरी क्रिएशन फेज में जो वो मेमोरी देगा उस बंदे को, मगर इसको मत पता है किसका डेटा टाइप क्या है, अभी मत चला है कोड, उसमें मत हमने कुछ डाला अभी, तो इसको ज़रूरी वो अनडिफाइंड ही रखना है, इट इज़ लाजमी. हालांकि मैंने ये कहीं पे पढ़ा नहीं, बल्कि आपके क्वेश्चन से मुझे ये जहन में आ गया, लेकिन मुझे पता है 100% दिस इज अनडिफाइंड. क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो जब आप कोई चीज़ उसको देते नहीं हो, कोई असाइन कुछ करते नहीं हो, वेरिएबल हैज़ टू बी अनडिफाइंड. लेकिन लेट और वैर में खाली ये फ़र्क है, लेट जो है वो भी होइस्ट है, यानी कि उनको भी मेमोरी क्रिएशन फेज में रखा गया है, लेकिन स्क्रिप्ट एरिया में है जो कि इनएसेसिबल है. तो इसलिए उसको आप वो चीज़ नहीं कर सकते, उसको पहले डिक्लेयर करना है, उसके बाद यूज़ करना है. ठीक है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर क्या करो, वो दूसरा था ना कुछ डायलॉग. एनीवेज, ओके, सी यू गाइस टुमारो. अल्लाह हाफिज़.